हट बंद कर शट अप डिबेट या यस आई एम राइट यू आर रॉन्ग कंप्लीटली यू जस्ट शट अप। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि फट जाएंगे। आप फट जाएंगे। शुरुआत किया था मैं। Alright everybody, ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for yourself. That's really exciting and interesting and all on. The most important thing in communication is to be, and there is only one rule for being a good talker, learn to listen. आपको बेहतर स्पीकर बनना है तो सुनना सीखो मेरे दोस्तों, और आप सुनने का आज काम बहुत बेहतर तरीके से करिएगा। Welcome to this great and special debate competition. As we know that this is the second global debate competition. In the first global debate competition, as we know that Rohit was there that who scored good and he just became the first competitor. And then there was Harsh Sharma and then there was Shrishti Sharma. Both Sharma, one Yadav ji. All right. And Mia Bhai gave the trophies. Okay, anyway. So all these points, like last time, we were so excited and somewhere astonished and shocked after the announcements. But today there will be also one more announcement of one more debate competition. Before initiating or before starting, I would like to encourage you and support you that कि ये दोपहर ये शाम आपकी सुहानी हो जाए, हर तकलीफ हर टेंशन हर ना प्रैक्टिस करने की बात पुरानी हो जाए, दे जाए ये ट्रॉफी आपको आज का कंपटीशन कि ये ट्रॉफी आज सिर्फ और सिर्फ आपकी दीवानी हो जाए. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, welcome to this special and tremendous jubilant fantastic and supercalifragisticexpialidocious competition. Because when you talk about the competition, as Nelson Mandela once quoted and stated that, you know, when I came to realize the importance of communication skills and debating skills, I conquered my fear and I became able to win the world. Just like that, when Mahatma Gandhi was invited once for talking about the weights and the profits and the benefits of the vegetarian, he just shivered and he got completely silent and black, and that time he realized the importance of communication skills and the confidence skills and public speaking skills. Then he also quoted, after being a great advocate and barrister, came from UK. So ladies and gentlemen, just like that, we are also in the field of communication skills and public speaking and also speaking skills. We are also lucky and we are the most charming and debonair personalities of this era because we are here, we are still learning. And the person who always learns, she always stays young, and I can say proudly that we all are Jawans. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for you. हम सब जवान हैं, हम सब महान हैं, और करना आज अपनी किताबों कॉपियों का कल्याण है, इसलिए तब जाके मिलेगी आपको मंजिल जब जीत पाएंगे आप मेरा और अपने अपोजिट टीम का दिल. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, किल दिल. ओके, सो आज की शुरुआत और आगाज करने से पहले कि आज बहुत खास पल है, बहुत खास लम्हा है, लेकिन आपका दिमाग और आपकी बातें कुछ इसी तरीके से इन्वेलप की तरह है. आज आपको ये नहीं पता कि कौन क्या अपने इन्वेलप से निकालेगा. हो सकता है कि आप कहीं ये सोच रहे होंगे कि मेरे भी इन्वेलप से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो तो आप ही को पता है. तो सनम तेरी कसम. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, just like that, I have this envelope, a very special and tremendous envelope for today's segment. And I will just, take a lot of things. For example, if I take a single article and paper for today, I will be reading and I will say that dating apps are igniting long distance romance. Right? ये आर्टिकल है, आज का ही आर्टिकल है जो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी होगा और आपके बून वालों के फेवर में है और बेन वालों के अपोज में है. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो डेटिंग एप्स आपकी मदद करेंगे और आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से जुड़ने का हक देंगे और मौका देंगे. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल मैंने अपने इनवेलप से निकाला, जैसे आप अभी आज जाके निकालेंगे. मैं दूसरे आर्टिकल को निकालने की कोशिश करता हूँ, कोई दूसरा आर्टिकल निकालता हूँ. आई विल टेक सम वन एल्स एंड आई हैव फ्यू पेपर्स एंड दीज पेपर्स कम्युनिकेशन कोड्स. Photography is in excess of a made of genuine communication of thoughts. It is an inventive workmanship. So first of all, what you have to understand
and care one thing, that communication is so creative. It is not always about your mugging and cramming points, that what you speak after cramming a long period of time, but it is always to be very creative and very innovative. Be still when you don't have anything to state. When real enthusiasm moves, state what you must state and state it hot. आप हमेशा साइलेंट रहेंगे जब तक आपके पास कोई गहरा पॉइंट नहीं रहेगा. इस डिबेट में आपको यही करना होगा. जैसे आपको वो मौका मिले तो अपने पॉइंट को इस तरीके से कहना है ना कि माँ की कसम माँ खुश हो जाए. Ladies and gentlemen, the third article is that I believe it's critical to have an impact circle or input circle where you are continually. पूरे डिबेट में आपको 2-4 घंटे जब तक डिबेट चलेगा तब तक आपको सिर्फ अपने जहन में अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि कैसे आप इस डिबेट में इंप्रूव करेंगे. ये जिम रॉन कह रहे हैं, ये एलॉन मस्क ने कहा है, DH लॉरेंस ने पहली बात कही थी, एंसल एडम्स ने पहली बात कही थी उससे पहले. पावरफुल कम्युनिकेशन इज 20% व्हाट यू नो. पावरफुल कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ 20% है जो आप जानते हैं, 80% है. मेरे पास एक और आर्टिकल है जो मैंने अपने इनवेलप से निकाला है. कम्युनिकेशन समटाइम्स इज नॉट व्हाट यू फर्स्ट हियर, लिसन नॉट जस्ट टू द वर्ड्स बट लिसन फॉर द रीजन. हम अक्सर शब्दों को सुनते हैं, अल्फाजों को सुनते हैं, बातों को सुनते हैं, लेकिन जज्बातों को और उसके वजह को नहीं सुनते. तो आज जब भी आप किसी स्पीकर को सुनिएगा उसकी वजह जरूर सुनिएगा, वो उसके पीछे का रीजन क्या है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट वी आर टॉकिंग विद ईच अदर इन अ वे दैट हील्स, नॉट इन अ वे दैट वुंड्स. ऐसे बात करना है कि जैसे सामने वाले को आपकी बातें हील करे, ना कि उसको घायल करे. घायल इस वक्त जरूर करे कि उसको सामने वाले को हराना है, ना कि उसके दिल को दुखाना है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल आई हैव नोन आर द वंस हु डू मोर लिसनिंग देन टॉकिंग. मैं अक्सर सक्सेसफुल इंसान को देखा हूं कि वो बोलने से ज्यादा सुनते हैं. तो आप भी आज सुनने का मौका मत खोइएगा डियर दोस्तों. मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई. लोग अक्सर समझने के लिए नहीं सुनते हैं, जवाब देने के लिए सुनते हैं. तो जवाब बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन समझने के लिए भी सुनिएगा, ये गुजारिश रहेगी आपसे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज टू हियर व्हाट इज नॉट बीइंग सेड. जरा गौर से सुनिएगा, जो बातें जुबान से नहीं बोली जा रही हो सकता है वो आपकी अदाओं से, आपके खुजलियों से, आपके जो है कि हालातों से बोली जा रही है. तो प्लीज माइंड इट, आप इसको माइंड करिएगा एंड कीप इन योर माइंड. पत्नी कहे दर्द है सर में तो गुलाब का फूल देना, क्योंकि हो सकता है कि वो जुबान से नहीं बोल पा रही हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज टू बी, एंड देयर इज ओनली वन रूल फॉर बीइंग अ गुड टॉकर, लर्न टू लिसन. आपको बेहतर स्पीकर बनना है तो सुनना सीखो मेरे दोस्तों. और आप सुनने का आज काम बहुत बेहतर तरीके से करिएगा. उछल के बोलेंगे ज्यादा आप, मुझे पता है. दिस फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कंपीटेड इन डिबेट, राइट, वो क्योंकि पूरे जज्बात एक हफ्ते के दबे हुए हैं और आज वो बम ब्लास्ट होंगे आज. तो दिस फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर competed in debate which provided her the skills necessary for a successful career in politics. Her ability to craft speeches and deliver them are lasting parts of her legacy, and she credits them to her debate experience. Margaret Thatcher, former prime minister of the British, and she said and she accepted and confessed कि मैं जो अपना इलेक्शन जीती हूं वो कहीं ना कहीं उसमें डिबेटिंग स्किल्स मेरी बहुत ज्यादा काम आई है. तो आपकी भी डिबेटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सक्सेस के लिए बहुत काम देगी, इसलिए ये सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं. और बहुत से लोग, मैल्कॉम एक्स ने कहा, कुछ कहा, जेम्स डीन ने कहा, बल सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बातें रखी. तो इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा. ये मैंने कुछ आर्टिकल्स आपके सामने रख दिए. कमिंग टू सम मोर एनवेलप्स, खजाना. कुछ खजाना ये है दोस्तों मेरे पास. और लिखने के साथ साथ आई विल टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट. I was roaming at CP last day. मैं CP पे टहल रहा था. So there was a lady who came to me and she requested me to buy this pen. And I asked to her, what happened? That why are you selling this pen? And she said that I have nothing to eat. I have no, the money to purchase medicines for my kids and children. I cannot actually bring them up because I am facing financial crunch and a lot of big issues of the finance. And then she requested me to buy this pen. And I bought this pen, fortunately, and I gave just 10 rupees because she requested me to pay 10 rupees for this pen. Maybe this would be costing 5 rupees or 10 rupees. But why she gave it to me and requested me? Because she had a need, and I also utilized this pen and I wrote a lot of things with the help of this pen. This pen is not useless for me, and selling this pen was not useless for her.
And that is why we can say that a pen can change your life, and pen is mightier than the sword. She was not selling actually a knife. She was not selling any bomb. She was not selling any gun, and she was not selling any bullet. But she was selling one of the most important, the weapon of the life, and that was pen, and that's why I bought it. So by this pen, I have written some of the things, and I would like to tell you, ladies and gentlemen, हाथ में हो कलम तो कलाम लिख देती है, हाथ में हो कलम तो पैगाम लिख देती है। ये हवा का रुख तो नहीं, पर राजनीति और नीति का रुख बदल देती है। ये कलम है किसी को सनम के लिए खत, खत तो किसी का सर कलम कराती है। कभी इसको बेचने वालों को तो कभी इसको इस्तेमाल करने वालों को जीवन बेहतर बनाती है। ये कलम है सवार देती है, ये कलम है निखार देती है। यही कलम निखार देती है, यही कलम तुम्हारी ताकत बनती है, यही कलम एग्जाम का रिजल्ट बनती है, सवालों का हल बनती है, जल के लिए अर्जी का नल बनती है, तुम्हारे अच्छे भविष्य का कल बनती है, तुम्हारे हर इरादों की पहल बनती है, और गलत इंसान के हाथ में आ गई तो खून खराबा, दंगा फसाद और कत्ल बनती है। यही कलम तुम्हारी जो है कि एक पहल बनती है। तो कलम की ताकत है, कलम को समझना सीखो, कलम को इस्तेमाल करना सीखो। और कुछ 10 रुपये उस लेडी से मैंने कलम को खरीद कर मैंने रात में अपनी चिट्ठी लिखी, और इसी कलम से मैं आगे चलता हूं। तो जो चिट्ठी मैंने लिखी, मैंने एक ऐसे चीज पर लिखी जो चीज हम सब के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज पेपर, दैट इज कागज। कागज ना हो तो अर्जी नहीं लगती, कागज ना हो तो जिंदगी फर्जी नहीं लगती। कागज है तो सब कुछ है, क्योंकि कागजों से इंसान की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि शुरुआत होती है। तो आइए, कागज, पेपर्स इनसाइड द एनवेलप। कागज जो है तो है, वरना नहीं है तो जिंदगी नहीं है। शाख भी कागज, किताब भी कागज, लोगों की आवाज भी कागज, कलम और दवात भी कागज। खत एक कागज, एग्जाम का रथ एक कागज, गंजेपन का इलाज का प्रचार भी एक कागज। आता है ना, गंजेपन का इलाज कराओ। दुनिया का समाचार भी कागज, प्यार का इजहार भी कागज, And I am waiting for you का इंतजार भी कागज, I love you का इजहार भी कागज, I hate you, I will never meet you का इजहार भी कागज, I am waiting for you for a long time का इंतजार भी एक कागज। तो कागज है तो दीवानगी है, कागज है तो रवानगी है, दवाओं की पर्ची का कागज, तहसीलदार और दरोगा से अर्जी भी कागज, तुम्हारे निशा एक कागज, तुम्हारे बच्चे की दवा एक कागज, तुम्हारे बच्चे हो या जवा एक कागज, तुम्हारे जो है कि जन्म तिथि भी एक कागज, तुम्हारी मरण तिथि भी एक कागज, तुम्हारी आकृति भी एक कागज, और तुम्हारी प्रकृति भी एक कागज, तुम्हारी स्थिति भी एक कागज, तुम्हारी उन्नति भी एक कागज, तुम्हारी सलामी भी एक कागज, तुम्हारी कलामी भी एक कागज, सब कुछ है ये कागज। तो कागज पर ही लिखकर आप लाए होंगे, तो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कागज। और उस चीज का इस्तेमाल कुछ ऐसे करना है कि जुबान, तो जुबान बहुत बेचैन हो जाती है, जुबान बेचैन हो जाएगी, किसी का दिल तोड़ जाएगी, किसी से दिल लगी करा जाएगी। ये जुबान है साहब। आइए, कानों में अज़ा भी जुबान से, ओम नमः शिवाय भी जुबान से, नेता की पहचान जुबान से, अभिनेता का काम जुबान से, अल्लाह अकबर जुबान से, जय श्री राम जुबान से, अच्छा या बुरा काम भी जुबान से, मेरा नाम तेरा नाम भी जुबान से, तुम गलत मैं सही ये भी जुबान से, दूध का लोग बना देते दही जुबान से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सी बातें हो जाती है जुबान से। हालातों के मसीहा बन जाते हैं, हालातों के मसीहा बन जाते हैं इसी जुबान से, और कुछ ही पल में घटिया बन जाते हैं इसी जुबान से। हिंदू मुसलमान भी इसी जुबान से, तू घटिया तो मैं महान भी इसी जुबान से। और आज इन तीनों का साक्षी मानकर मैं ये वादा करता हूं कि आज मैं ये साक्षी मानकर तीनों से वादा करता हूं और आप लोग से वादा करता हूं कि मैं इस कलम और इस कागज का और अपनी जुबान का हमेशा खुदा की कसम, भगवान की कसम अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है और ये आपका खुद से खुद वादा होना चाहिए। So ladies and gentlemen, it's really a very important and phenomenal afternoon for all of us and moment for all of us, because we all are gathering to utilize and use all these three aspects and important aspects of life, and that is the first one I just told and described about the pen, the second one I told about the paper, and the third one I told about your जुबान। और तीनों चलती है आपके जहन और दिमाग से, इसलिए दिमाग को करो क्लियर, नहीं रखो कभी फियर, और हमेशा लगाते रहो गियर। ऑलराइट, सो आज गियर अप करो, गियर अप एंड चिल अप योरसेल्फ। एंड गवर्नमेंट का कहना है जिसकी एआई बड़ा दिक्कत कर रहा है, ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। पहला वाला गर्लफ्रेंड से प्यार करने के लिए आप लोग के लिए बताया था,
दोनों का मैंने एक एक पॉइंट बता दिया और आप लोग बाकी अपना पॉइंट बताइएगा। अब मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैंक पेपर। आई हैव जस्ट ओनली ब्लैंक पेपर। और आप सब लोग प्लीज अपने माइंड को ऐसे ही करके रखिएगा। उछल उछल के पॉइंट्स इतने आएंगे, ये देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ पर्सन, एज अ बॉय, एज अ गर्ल, आई एम लाइक दिस खाली पन्ना। तो आज मैं इस खाली पन्ने पे कुछ चीजें लिखता हूं। सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं कि आप सब लोग तालियां बजाएंगे, अभी नहीं, आप सब लोग तालियां बजाएंगे कि हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर पर। तो उसके लिए तालियां बजाएंगे आप। एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। अब पटना और बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, और प्रचार कर दूं थोड़ा अच्छे से, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी हो, दुबई हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, कहीं भी बैठे हुए आप किसी भी सातों महाद्वीप में से किसी द्वीप से और किसी प्रदेश देश से आप पढ़ सकते हैं। हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट की क्लासेस ले सकते हैं। पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन, आपको पॉइंट मिल गया। ओके, तो दोनों का पॉइंट मैंने दे दिया। साथ में आप सब लोग इस ब्लैंक पेपर पर वादा करिए और इरादा करिए और अच्छी बातें लिखिए कि आप फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे। और मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देने के बाद प्रोग्राम को आगाज करूंगा और उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। आई वांट दैट पंपिंग मशीन। वाकिफ होंगे। सो यू ऑल नो अबाउट दिस बलून। हम सब लोग आज इसी तरीके से आए हैं। अब हम सब लोग के साथ होगा क्या? ये कुछ होगा हमारे साथ। हट हट, बंद कर, शट अप, डिबेट, या यस, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग कंप्लीटली, यू जस्ट शट अप। तुम कैसे कह सकते हो? हाउ डेयर यू? अब ये आप फूलते हुए चले जाएंगे, फूलते चले जाएंगे, फूलते चले जाएंगे और फूलते हुए चले जाएंगे, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि फट जाएंगे, आप फट जाएंगे। तो कुछ आज ऐसे ही होने वाला है। तो तालियां अपने लिए। तो चलिए, आप भी फटने के लिए तैयार हो जाइए, हम तो फट चुके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वाज रियली अ वेरी नाइस। और बाद में लास्ट में मैं आपको दिखा दूं, जब सारे आपके दिमाग से, इनवेलप से चीजें निकल जाएगी, तो कुछ आप इस तरीके की चीज आपको मिलेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर्टिफाई होना, सबकी उम्मीद रहती है मैं सर्टिफाई होना चाहता हूँ, मुझे ये ट्रॉफी मिले, ये मिले, ये मिले, राइट? तो ठीक है, ये सारी चीजें। तो आप लोग प्लीज कृपया करके तैयार रहिएगा और आई एम रेडी टू गिव यू दिस। बाकी मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं कि हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में अब हम लोग, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग से शुरुआत किए थे, तो पब्लिक स्पीकिंग हमने ऐड किया। इंग्लिश स्पीकिंग से 2012 में शुरुआत की थी, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग को ऐड किया, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को ऐड किया, इंटरव्यू को ऐड किया। इंटरव्यू में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हमने उसमें यूपीएससी इंटरव्यू भी ऐड कर दिया। साथ में एक चीज़ पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे दिल से सुकून मिलता है कि अब हम लोग थोड़ा सा एंग्जाइटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे अब काम करने लगे हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी लोगों को ट्रीट किया है, तो एक बार उसके लिए भी आप तालियां बजाइए। सो लेट्स स्टार्ट। और इसको हम लोग और आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे और इसको एक अलग पहलू पे लेके जाएंगे। तो अब मैं आपको दो लाइन शायरी मोटिवेशन के साथ आई विल स्टार्ट द प्रोग्राम। हो शुरुआत किया था मैं, मुलाकात किया था मैं, कुछ बात किया था मैं, कुछ बात किया था मैं, धीरे धीरे दिल को चुराया, धीरे धीरे अपना बनाया, कुछ खास करके दिखाया। आप लोग के लिए है, कुछ खास करके, धीरे धीरे शुरू करेंगे और कुछ खास करके दिखाएंगे, तब ट्रॉफी मिलेगी। हो आपने दी हिम्मत, एक एक मेंबर सबको हिम्मत देगा जो जो लूज करेंगे, राइट? आपने दी हिम्मत, आप दी मोहब्बत, ओ एवरीबॉडी, ओ ला 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 ला, एवरीबॉडी गिव अ क्लैपिंग। Everybody, stay happy. जब बारात चली गई तो कह रहे हैं कि हो आपने दी, everybody, आपने दी ताकत, आपने दी मोहब्बत, everybody,
सामने वाले को देख के गाना है। आपने दिमाग शुरुआत किया था मैं। Alright, everybody, ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for yourself. That's really exciting and interesting and all in the history of Happiness Institute, and you all would be so excited and jubilant. Before starting, I would like to say that, so you start with complete enthusiasm and dedication. Don't think that you are going to get a failures or rejections and you are going to be a loser. If you are going to be a loser, you're going to gain experience. And I would like to especially encourage to the fresh and new students of English speaking who have so much anxiety and fear of stage and expressing yourself. Don't worry about it. You are competing to the good people. And if you are in the department of these teams, you are the best and you are already the winners. That's why don't think it. Thank you very much, everyone.